Hello guys, welcome to our friends. In this video lecture we are talking about that AFLP. Okay, so what is the meaning of that AFLP? So AFLP is a one type of that molecular marker technique. Okay, in previous video lecture we are talking about that first of all the introductory portion of that what is the meaning of the molecular marker, and then after we are discussing of that RFLP. Okay, in this video lecture we are talking about that amplified fragment length polymorphism. Okay, so before we are starting our lectures, if you are new viewers, please like this video and subscribe my channel. The name is that Roshni's Zoology, and this is the zoology education platforms. I made 476 videos which are mainly associated with life sciences or the biology. Okay, mainly it is useful for that BSc and MSc students which are mainly focused on that CSR NET exam as well as the GATE exam. So first of all we are starting our main funda is that today is AFLP. Okay, so before we are starting about that the techniques, you know about what is the meaning of the molecular marker. So first you are watch that part 1 video, and then after that RFLP, then after you go for that AFLP technique. Okay, so sequentially अगर आप देखते जाओगे तो ही आपको पता चलेगा कि what is the main funda of the molecular marker. Okay, so we know about that the molecular marker is a one type of genetic marker known as the DNA sequence, as well as what about that dominant marker and what about the co-dominant marker. These are the features we are already discussing on our previous video lectures, so don't waste our time. We are go for that one main funda is called that AFLP. So amplified fragment length polymorphism is stand is called that AFLP. सो AFLP जो है वो जस्ट एक टाइप का मोलिकुलर मार्कर ही नहीं है, बट इट इज ऑल्सो इट्स AFLP PCR. ओके, इज अ PCR बेस्ड टूल टेक्निक. ओके, RFLP में अगर आपने देखा होगा, अगर आपको याद है थोड़ा थोड़ा, तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमने क्या किया था. जस्ट अ सेकेंड इज दैट RFLP में रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म किया था, यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करके उसके बाद हमने एनालिसिस किया था कि RFLP में जो जो हमने बैंड्स मिले थे उसको हमने एनालाइज किया था. बट हमने उस टाइम पर डिस्कस भी किया था ना कि ये जो है वो जेनेटिक रिसर्च के लिए है, डिसीज डायग्नोसिस के लिए है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के लिए, एज वेल एज क्राइम सीन के लिए ये यूज होता है. ओके, बट whenever we are talking about that AFLP, जो AFLP जो टेक्निक है वो RFLP से बहुत ज़्यादा वाइडली यूज होती है. क्यों? क्योंकि हम उसका जो मेन डिफरेंस है वो अभी हम डिस्कस करेंगे. क्या होता है इसके अंदर कि यहाँ पर देख सकते हो आप लोग कि सबसेट ऑफ रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स आर देन एम्पलीफाइड यूजिंग द प्राइमर्स complementary to the adapters and the part of the restriction site fragments. Okay, this is the amplified fragments are visualized on the denatured polyacrylamide gels either through autoradiography और फ्लोरोसेंस मेथडोलॉजीज. ओके, सो यहाँ पर क्या होता है कि इससे ये पता चलता है, ये पूरा जो हमने पैराग्राफ रीड किया उससे ये पता चलता है कि यहाँ पर जो है ना रिस्ट्रिक्शन एंड साइट से फ्रेगमेंट तो बनता ही है. ओके, यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम तो यहाँ पर भी आएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ टाइप से स्पेसिफिक करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, प्राइमर्स यूज किए. ओके, सो प्राइमर्स आते हैं तो सीक्वेंस भी आएगी और प्राइमर्स आएगा तो पीसीआर भी आएगा. ओके, तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है. RFLP में पीसीआर बेसीआर कुछ होता नहीं है. ओके, AFLP में होता है. सो नाउ talking about that the difference between the two techniques first. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल द RFLP के अंदर हमने क्या किया था, तो दोनों का देखो सिर्फ और सिर्फ जो आगे वाला जो पोर्शन है वो ही डिफरेंट है. रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म और एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म. ओके, नाउ प्रिंसिपल अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होता है कि डिटेक्शन ऑफ वेरिएशन इन DNA फ्रेगमेंट लेंथ आफ्टर द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन. ओके, यहाँ पर क्या होगा, डीएनए डिटेक्ट होगा, उसकी पॉलीमॉर्फिज्म डिटेक्ट होगी बाय द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन एज वेल एज फॉलोड बाय द सिलेक्टिव पीसीआर एम्पलीफिकेशन. तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है.
This one is the highlighted portion, selective PCR amplification. Okay. Now तीसरा बात किया है कि डीएनए रिक्वायरमेंट कैसी होती है. तो अगर हम RFLP यूज करते हैं तो उसके अंदर हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए चाहिए होगा, जबकि AFLP में ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, बिकॉज यहाँ पर हम PCR चला रहे हैं. ओके, तीसरे या फिर फोर्थ स्टेप के अंदर हम यहाँ पर PCR चला रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. ओके, सो ये आपका क्या होगा, एक इजी टास्क होगा. ओके, जीनोमिक डीएनए को आइसोलेट करके जब आप RFLP लगाते हो तब जाकर आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डीएनए निकालना पड़ेगा. ओके, ब्लड या फिर टिश्यू में से, जिसमें से भी आप कर रहे हो, तो आपको वहां पर डीएनए ज़्यादा चाहिए होगा, जबकि AFLP में ऐसा नहीं होता. ओके, नाउ सेंसिटिविटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो RFLP जो है वो लोअर सेंसिटिव है एज कम्पेयर टू द AFLP. ओके, स्पीड भी अगर आप देखना चाहिए तो RFLP में हम लोगों ने क्या किया था, सदर्न ब्लॉटिंग यूज की थी. सो इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग मेथड, एंड whenever we are talking about that AFLP, so AFLP में यहाँ पर हम PCR यूज कर रहे हैं, so generally it is a faster as compared to that RFLP. Okay, now most important thing is that पीरियड सीक्वेंस इंफॉर्मेशन चाहिए होगी जब आप RFLP यूज करते हो तब. ओके, यूजली रिक्वायर्स द प्रोब सीक्वेंस नॉलेज. आप जिस भी फ्रेगमेंट को एनालाइज करना चाहते हो उस फ्रेगमेंट के अकॉर्डिंग आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब होना चाहिए. ओके, तो आपको पीरियड सीक्वेंस नॉलेज होना चाहिए. ओके, लेकिन अगर आपके पास पीरियड सीक्वेंस नॉलेज नहीं भी है तो भी आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ AFLP. ओके, यहाँ पर जो है पॉलीमॉर्फिज्म हम डिटेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल पॉलीमॉर्फिक लोकाई को या फिर अक्रॉस द जीनोम. जो भी टारगेटेड सीक्वेंस है उसको पहले आप क्या करोगे, एडेप्टर से लाइगेट करवाओगे. पहले हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया, कट किया. ओके, सारे फ्रेगमेंट्स हमें मिल गए. अब नाउ हम क्या करेंगे, उसके अंदर एडेप्टर्स ऐड करवाएंगे बाय द हेल्प ऑफ लाइगेशन. ओके, देन आफ्टर हम क्या करेंगे, प्राइमर्स ऐड करके PCR लगाएंगे. ओके, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ AFLP की. ओके, PCR लगाएंगे और देन आफ्टर जो भी सीक्वेंस एम्पलीफाई होगी वो थोड़ी बहुत क्या होगी, सिलेक्टिव होगी. देन आफ्टर हम स्पेसिफिक प्राइमर्स, जो सेट ऑफ प्राइमर्स है वो स्पेसिफिक लेंगे, तो हमें स्पेसिफिक क्या मिल सकता है, AFLP PCR मिल सकता है. ओके, एज वेल एज अगर हम कोस्ट की बात करें तो रिलेटिवली अगर हम पूरा जीनोम लेकर उसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म चेक करना चाहते हैं, ओके, लिंकेज या फिर मैपिंग या फिर कुछ भी जीनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में चेक करना चाहते हैं, तो AFLP जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और फास्ट भी है, इसीलिए एज कम्पेयर टू दैट RFLP. ओके, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सदर्न ब्लॉटिंग यूज होती है, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बफर्स यूज करने पड़ेंगे, प्रोब्स यूज करने पड़ेंगे, और वो भी क्या होने चाहिए, उसकी जो पूरा प्रोटोकॉल हमने जब देखा था ना RFLP में, तभी मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही ज़्यादा टीडियस प्रोटोकॉल है. ओके, सब बफर्स की pH अगर मेंटेन नहीं हुई ना तो आपको रिजल्ट फॉल्स पॉजिटिव भी मिल सकता है. ओके, नाउ जब टॉकिंग अबाउट दैट एप्लीकेशंस, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि AFLP जो है वो जीनेटिक डाइवर्सिटी स्टडी करने के लिए, लाइक दैट प्लांट है, फंजाई है, बैक्टीरिया है, उसकी आपको डाइवर्सिटी चेक करनी है. ओके, उसका पूरा जीनोम मैप करना है, उसकी लिंकेज स्टडीज चेक करनी है, पॉपुलेशन जीनेटिक्स चेक करना है, तो वो आप AFLP के थ्रू कर सकते हो. ओके, सो व्हाट अबाउट द प्रोसीजर मैंने आपको पहले ही डिफरेंस बताते वक्त बता दी है कि देखो ये पूरा आपका जीनोमिक DNA है. ओके, कोई भी हो सकता है, प्लांट का या फिर फंजाई का या फिर बैक्टीरिया का. तो उन्होंने क्या किए, यहाँ पर 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स लिए हैं. ओके, और उसके थ्रू उन्होंने आरिडाइजेशन करवाया है. आरिडाइजेशन के बाद उन्होंने क्या किया, DNA लाइगेज की हेल्प से एडेप्टर जो है वो उसको लाइगेट किया, टर्मिनल साइट ऑफ दैट फ्रेगमेंट्स. ओके, देन आफ्टर ये एडेप्टर्स आ गए, अब क्या करेंगे वो लोग, प्राइमर्स ऐड करेंगे. प्री एम्पलीफिकेशन यहाँ पर लिखा हुआ है ना, प्री एम्पलीफिकेशन यानी कि यहाँ पर हम ये लोग क्या कर रहे हैं,
प्राइमर्स ऐड कर रहे हैं, रैंडम प्राइमर्स जो एडेप्टर की सीक्वेंस को जानते हैं एज वेल एज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की सीक्वेंस को भी जानते हैं, ऐसे प्राइमर्स उन्होंने ऐड किए. After the adding of the primers and PCR, whenever they are done, then after it gives for the selective amplification by the help of adding the specific primer site on that genomic DNA. Okay, then after you go for the gel electrophoresis, and you see here these are the various band patterns on that agarose gel. Okay, जिसको आप ऑटो रेडियोग्राफी या फिर फ्लोरोसेंस बेस्ड टेक्निक से थ्रू उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो. ओके, नाउ अब अगर आप उसकी एप्लीकेशन पर जाओ तो मैंने आपको एप्लीकेशन भी बता दी है कि इट इज़ वेरी सेंसिटिव एंड रिप्रोड्यूसिबल टेक्निक. ओके, एंड इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर द जेनेटिक वेरिएशन, checking about that closely related species like the plants and fungi, animals, bacteria. Okay, as well as ये जो है ना ये रिप्रोड्यूसिबल तो है ही, सिलेक्टिव भी है, सेंसिटिव भी है, लेकिन साथ ही साथ वो एट अ टाइम 50 to 100 जितनी जो टारगेट साइट्स है ना उसको भी वो क्या कर सकती है, एम्पलीफाई कर सकते. ओके, और एम्पलीफाई करके आपको वो रिजल्ट भी प्रोवाइड करते. ओके, सो क्रिमिनल और पैटर्निटी टेस्ट के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती है. लिंकेज स्टडी टू जनरेट द मैप्स लाइक दैट QTL एनालिसिस के अंदर ये AFLP यूज़ किया जाता है. ओके, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज़ द क्वांटिटेटिव ट्रेट एनालिसिस. ओके, लेकिन इससे पहले आपको AFLP पता होना चाहिए. ओके, नाउ AFLP इज मेनली यूज्ड फॉर द जेनेटिक डाइवर्सिटी, लिंकेज मैपिंग, phylogenetic studies and polymorphic detections. So I hope you are clearly understood about that AFLP techniques, what is the difference between that RFLP and AFLP, then after the procedure and their applications. I hope you are enjoy this video lecture. Okay, please like this video and subscribe my channel, and if you are any doubts related to that molecular marker study, please give your doubts in the comment section. Thank you so much for watching.